terror blast case. Now, a raid by a central agency is currently underway at the Okhla, that is in the national capital office of the Al Falah University, which is located in Faridabad, Haryana. More details are awaited, but what we do know at this moment is that the raids are currently underway as the investigation into the car bomb blast near Red Fort continues. One central agency is raiding the Okhla office of the Al Falah University located in Haryana. Now, which agency is carrying out the raid is unclear at the moment. But remember, this coming in after several doctors and professors from the university, including the main suspect, Dr. Omar Nabi, the one who allegedly drove the car, were employed at the Al Falah University in Faridabad. And amid these developments, raids are currently underway at the Okhla office of this particular university. Remember, this is one of the raids that is being carried out at the Al Falah University. This is the Okhla office in Delhi, where the raids are presently being carried out. Remember, this is the university which is under the key eyes of the investigating agencies. Remember, the main occupant of the car, Omar Nabi, that drove into the Red Fort area, was also one of the doctors at the university, and two other doctors have also been arrested from the same university. However, the university has issued a statement distancing itself from those accused of being part of the Faridabad terror module. However, investigating agencies are continuing into various angles, including the money trail associated with the university, and also the working of the university, and the whereabouts and of the chancellor of the university is also being looked at. Jatin, my colleague, is now joining us for more details. Jatin, what do we know about this raid which is underway at the Okhla office of the Al Falah University? Which particular agency is carrying out this raid, and if you can give us more details? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली के अंदर ये ओखला में अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसको एक ट्रस्ट चलाता है, वो भी अल फलाह ट्रस्ट के नाम से है, उसके दफ्तर में इस समय रेड की जा रही है। और जो जानकारी मिल रही है कि ईडी की टीम इस समय उस दफ्तर में पहुंची है और जो रेड्स है वो की जा रही है। दरअसल जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है उसको लेकर ईडी ये रेड कंडक्ट कर रही है कि यूनिवर्सिटी में जो पैसा है वो कहां से आता है, ये ट्रस्ट के पास पैसा किस तरीके से आता है, और जिस तरीके से इस ट्रस्ट के पास जमीनें हैं वो जमीनें इस ट्रस्ट को कैसे मिली, इन सभी जो पहलू है उसको लेकर जो रेड है वो कंडक्ट की जा रही है। जो जानकारी हमें मिली है कि अब से थोड़ी देर पहले ही जो ईडी की पूरी टीम है वो ओखला में अल फलाह यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का जो दफ्तर है वहां पर पहुंची है, और संभवतः जो पूरे पुलिस बल के साथ वहां पर है और रेड्स अभी अंदर कंडक्ट की जा रही है। लगातार ये आरोप लग रहे थे कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को चलाने में जिस फंड का इस्तेमाल किया जाता है वो फंड मिडल ईस्ट और सऊदी की तरफ से आता है, हवाला रूट का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। और जिस तरीके से लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ उसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टरों का लिंक स्टैब्लिश हुआ, जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया वो गाड़ी भी वहां पर लोकेट की गई। तो कहीं ना कहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी की इन्वेस्टिगेशन को लेकर उसके रोल को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। और शुरुआत से ही रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने सबसे पहले बताया था कि ईडी इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल टर्म को लेकर कि कैसे इस यूनिवर्सिटी के पास पैसा पहुंचता है उसको लेकर इन्वेस्टिगेट करेगी। और वैसा ही हुआ कि तकरीबन 7 दिन बाद अब ईडी की टीम जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो दिल्ली में दफ्तर है, जो कि ट्रस्ट का दफ्तर है, वो इसी दफ्तर से जो रेड्स है वो आगे कंडक्ट की जाती है। इसी दफ्तर से जो आगे काम है वो किया जाता है, फंड कैसे मिलना है, किसको कितना देना है, वो सभी यहाँ से तय किया जाता है। और यही कारण है कि ईडी की टीम इस समय दफ्तर के अंदर मौजूद है। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है उनको खंगाला जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण कि फंड किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी के पास पहुंचता है, इस ट्रस्ट के पास पहुंचता है, जो जमीन इस ट्रस्ट के पास है वो कैसे ली गई। और ये ट्रस्ट जो कि एक मेडिकल पूरा इंस्टीट्यूशन चलाता है, हॉस्पिटल्स इस ट्रस्ट के पास है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस इस ट्रस्ट के पास है, तो उसकी फंडिंग किस तरीके से होती है, हायर किस तरीके से करते हैं, रिक्रूटमेंट किस तरीके से होती है, इन सभी एंगल्स पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। यही कारण है कि अब से थोड़ी देर पहले ईडी की टीम दफ्तर पहुंची है और जो इन्वेस्टिगेशन है इस पूरे मामले में अब ईडी करती हुई नजर आ रही है। जी।
जतिन, जैसे इससे पहले यूनिवर्सिटी ने एक स्टेटमेंट इशू करी थी और अपने आप को जो यूनिवर्सिटी को ये जो पूरा मामला है उससे थोड़ा डिस्टेंस कर लिया था और कहा था कि हमारा कोई इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन क्लियर है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बहुत सारे एंगल खंगाल रही है। जहाँ तक जो यूनिवर्सिटी के चांसलर की बात है उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। आप अगर हमें पूरा मामला इसका बताइए। बिल्कुल, देखिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने अल्फला यूनिवर्सिटी के लीगल एडवाइजर से बात की थी। हालांकि उस समय वो कह रहे थे कि हम हर तरीके से जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है, हम इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे। और वही तस्वीरें देखने को भी मिली थी कि हरियाणा क्राइम ब्रांच की टीम भी जब अल्फला यूनिवर्सिटी के दिल्ली से दफ्तर पहुंची थी तो तमाम दस्तावेज जमीन से जुड़े हुए, कैसे कितनी लैंड इनके पास है, वो सभी दस्तावेज जो है हैंड ओवर किए थे। लेकिन उसके बाद आपको याद होगा कि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने भी अल्फला यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट 2 FIR दर्ज की और वो धोखाधड़ी और फ्रॉडरी की FIR थी। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर अल्फला यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है, वाइस चांसलर है, उनको सम्मन भी किया गया था इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए और 2 सम्मन जो है वो उनको दिए भी गए। यूनिवर्सिटी हमेशा से ही खुद को सही साबित करने में लगी है। उनका कहना है कि हम जांच एजेंसियों को कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एपिक सेंटर, अगर कहना गलत नहीं होगा क्योंकि चाहे वो मुजम्मिल हो, उमर हो, चाहे वो शाहीन हो, वो सभी इस अल्फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर थे और इस पूरे वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में एक सबसे बड़ा रोल भी इन लोगों का था। तो उसी को देखते हुए कि इस यूनिवर्सिटी के पास फंडिंग कैसे होती है और जो एलिगेशन लग रहे थे कि कश्मीर के ही 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, तो उसको लेकर किस तरीके का क्राइटेरिया है, क्या कोई रिजर्वेशन है। यही कारण है कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर ईडी की टीम मौके पर है और रेड्स कंडक्ट की जा रही है। जी, All right. Thank you so much, Jatin, for getting us all those updates. We'll keep coming